वेलकम बैक टू माय चैनल स्विम विद सन्नी। और आज के इस वीडियो में विल गेट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑन स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स एंड अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन एंड स्विमिंग इवेंट। सो इससे पहले सॉरी, बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं जैसे इवेंट्स आई मेरे एग्जाम्स और असाइनमेंट्स थे। सो अभी हमारी वीडियोस फिर से आने लगेंगी। टू बिगिन विद, swimming competitions are not only limited to the pool races alone. In India and across the world, swimming competitions take many forms, from pool races that we usually see, to open water challenges and the most difficult part, long distance swims. In India, swimming competitions are held at different levels, such as school level, state level and national level, which are mostly guided by Swimming Federation of India or SFI. Along with the pool races today, open water swims are also gaining popularity. And open water swims are the ones in which the swimmer faces all the natural conditions like the water, waves, currents and the temperature changes, the most importantly. Internationally, these open water swims, generally open water swims, each swims happens like marathon swims. And not missing out with the iconic English Channel, generally known for its cold water and tough climatic conditions. That's why it's really hard for each and every swimmer, चाहे वो कितना भी अच्छा हो. English Channel is always hard. Such an open water sea swimming event in India is the Porbandar Swimathon, which is बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है from 25 to 26. And this year I also participated in the Porbandar Swimathon, so मेरे न्यू ईयर की ओपनिंग ही काफ़ी अच्छी हुई. Okay, Porbandar was not just a swimming event for me. It was learning different parts of life and the most importantly, discovering a new side of myself. Like I never imagined I would do something like this. So that was the most important thing that I got to know, that I have that even 1% or 10% of me which like doing such adventurous thing. But now मैं इन चीज़ों में इतनी नहीं हूँ. But yes, I think now I will explore this side of myself. Like जैसे हम वहाँ पे सी पे पहुँचे the first day, it was very calm, very beautiful yet very powerful. सी पे देख के काफ़ी डर लग गया था. But हमेशा मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था, I just kept telling myself कि करना तो एक बार जाके देख ही लेंगे, उसका एक्सपीरियंस तो करेंगे, अगर नहीं देख पाएंगे अंदर जाना चाहिए. एंड 5 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट कर दिया. I don't know how I did. That was not easy for me, but right things right. I was scared, I was anxious, I was nervous, excitement भी बहुत ज़्यादा. From the traveling ये सारी फीलिंग्स स्टार्ट हो गई. जैसे तुम वहाँ पे सामने इतना ज़्यादा क्या फील करी थी, आई वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू ऑल. तो बस बहुत थकी मैं, बहुत ज़्यादा थकी. बहुत टाइम से जब चली जाती हूँ फिर से शोर के बाद बीच से ही. बट जस्ट दैट साइड ऑफ crossing the finish line was the most heartfelt moment. Like मैं पहली बार मैं इतनी तो imagine a person or you swimming 2-3 घंटे से लगातार, और फिर आप अचानक से अगर उठ रहे हो, नीचे जमीन आ गई है, आप उठ रहे हो, मैं उठी फिर से पानी चलने गई. फिर मैं
शायद मैं आज नहीं करती. Even the most important thing of these events is not the results, are the learnings. मेरे को एक बहुत important चीज़ समझ में आई कि कुछ करने के लिए कुछ, जैसे हम लोग सब लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. मेरे को एक और चीज़ समझ में आई जो सब लोग बोलते हैं पर मेरे को तब समझ में आई कि फॉर गेटिंग समथिंग कभी ना कभी आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने एक बार पहले, इसलिए मैं इतना कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती नहीं थी मैं अपने, बिल्कुल भी. फिर मैं जब अभी निकली हूँ, नाउ आई एम ट्रूली लाइकिंग दैट एरा ऑफ मी एंड आई एम श्योर कि मैं ऐसे आगे बहुत सारी चीज़ें करूँगी जिससे मेरा कंफर्ट जोन वाला बबल ही खत्म हो जाए. क्योंकि आई लर्नड समथिंग एंड आप सबको बोलना चाहूँगी, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ के लिए मिलती है तो वो जो दिमाग में आता है ना कंफर्ट जोन, यार कहाँ पे क्या कैसे होगा नहीं होगा, आई थिंक पुशिंग दैट वन लिमिटेशन लाइन विच इज़ जस्ट अबाउट योर माइंड सेट इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ऐसी चीज़ों में you only need your patience, your mindset and your endurance. So मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस था. दिस वॉज अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन और आई होप कि आप सबको भी एक चीज़ समझ में आ गई हो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. मेरे को भी इसी टाइम समझ में आया इतना कुछ करने के बाद ही. सो दिस इज Sanvi signing off. I am Swim with Sanvi, learning each stroke at a time. Bye bye.